Adab, Namaskar, Sat Sri Akal to everyone. As in previous video yesterday, we had taken this poetry section of class 10th from Tulip series English, J.K. Bose. So, welcome to DSEJ home classes. Yesterday we talked about that previous poem Miracle, and before that we had discussed one first poem of this your poetry section, that was Prayer, and this is the third poem of your poetry section. Today we are going to discuss, right? So this is William Butler Yeats, and he had written one beautiful poem for his beloved, When You Are Old, यानी जब तुम बूढ़े हो जाओगे. ठीक है, तो इस पर विलियम बटलर ईट्स ने एक पोएम लिखी है. तो हम थोड़ा विलियम बटलर ईट्स के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, ये महाशय कौन थे. विलियम बटलर ईट्स वाज बोर्न इन डबलिन, आयरलैंड के रहने वाले थे. 1865 और 1939 में इनकी डेथ हुई थी. ही वाज अ ग्रेट इरिश पोएट. इरिश मतलब कि आयरलैंड से रिलेट करते थे, तो ही वाज इरिश. ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मॉडर्न पोएट्स. आल्सो ही बिगेन राइटिंग पोएट्री at his early age and was much influenced by Spenser, Shelley and a few pre-Raphaelite poets. Also, he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. So you can guess what a great poet he was. He was awarded Nobel laureate. He was Nobel laureate. He was given Nobel Prize for Literature in 1923. So was a great poet. Today we will discuss him, what he had written for us in class. So he was a symbolic poet. He was known as symbolical poet. Symbolical poet means कि when someone use figurative languages, for example by symbolic we can say that अगर direct हम बात करें कि you are clean, तो ऐसा भी बोल सकते हैं you are crystal clear. ठीक है, तो symbolic languages में फिगरेटिव लैंग्वेज में किसी के साथ बात करना, तो सिंबॉलिक पोइट से सिंबॉलिकल पोइट से माना जाता था. ठीक है, द मॉडगॉन इज बिफोर स्टडिंग दिस पोएम, बिफोर टचिंग दिस पोएम वी शुड दिस इज पिक्चर मॉडगॉन whom this poem is addressed. It is believed that this poem is addressed to this Mordgon. She was a politician of that Ireland, somewhere in Ireland, and he wants to marry with her, that poet William Butler Yeats, but she refused to get married with him. He won it 3 times. 3 दफ़ा उसने ऑफर किया था कि more than 3 times, 4 times, it may be 4 or 5 something. तो उसने ऑफर किया था कि तुम मेरे से शादी करो, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया था. तो उसके बाद उसने एक पोएम लिखी है उसके ऊपर. तो अब हम उसको देखेंगे क्या पोएम लिखी है. अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो तो क्या बोलता है, When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book. क्या बोलता है, When you are old and grey and full of sleep. अब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो full of sleep मतलब क्या, डोजिंग. डोजिंग मतलब जब उसको नींद आती है. जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बच्चा और बूढ़ा, इनको नींद बहुत ज़्यादा आती है. ठीक है, तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे एंड ग्रे हो, तुम्हारे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे. नॉडिंग बाई द फायर, तुम, और उस वक्त क्योंकि ठंडी भी बहुत ज़्यादा लगती है, खून कम हो जाता है, तो वो आग के नज़दीक बैठ जाते हैं. नॉडिंग बाई द फायर मीन्स सिटिंग बाई द फायर, सिटिंग नियर द फायर. टेक डाउन दिस बुक, इस बुक को पढ़ना. ठीक है, तो 2 पिक्स भी मैंने डाली हैं ताकि आपको आसानी से समझ सकें इसको. ठीक है, तो समझ गए होंगे 2 लाइनें. ठीक है, When you are old and grey, full of sleep and nodding by the fire, take down this book. Next. And slowly read and dream of the soft look. और आहिस्ता से पढ़ना. क्या बोलता है, and slowly read and dream of the soft look. और आहिस्ता से पढ़ना और तुम सोचना कि तुम्हारी शक्ल कैसी थी, तुम्हारी शक्ल कितनी खूबसूरत थी. and slowly read, आहिस्ता से पढ़ के, ड्रीम, तुम सोचना उसके बारे में कि तुम्हारी शक्ल एक वक्त में कितनी सॉफ्ट थी, यानी कितनी सुंदर थी. योर आईज हैड वंस एंड ऑफ देयर शेडोज डीप. और तुम्हारी आंखें कैसी खूबसूरत थी और कितनी गहरी थी, लेकिन आज जो है तुम्हारी उम्र में, आज जो तुम कैसी. तो he was suggesting her that you should read this book and think about this your soft look
when you are young, you was young, and then about you think about your eyes, how deep they were. And then he said, how many loved your moment of glad grace? कि when you are young, you were young, and so many people loved you, so many people want to get married with you. तो उस वक्त तुमसे बहुत ये दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ मॉडगॉन. एंड उस वक्त बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो तुमसे शादी करें. एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव ट्रू फॉल्स आर ट्रू. और वो सिर्फ तुम्हारी जो उस वक्त की शक्ल थी, वो उससे पसंद करते थे, वो सच था या झूठ था. यानी उनकी जो हमदर्दी थी तुम्हारे साथ, वो सही थी या गलत थी, वो मुझे नहीं पता. हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स आर ट्रू. वो सच से तुमसे हमदर्दी रखते थे या झूठ था. बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू. लेकिन एक इंसान था जो तुम्हारी अंतरात्मा, पिलग्रिम सोल मतलब प्योर हर्ट, जो तुम्हारे पाक दिल, पाक जो तुम्हारी आत्मा है, उसको पसंद करता था. एंड लव्ड द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस. और उसका मतलब क्या कि तुम्हारे डिफिकल्ट टाइम्स जो हैं उसको भी वो क्या मतलब पसंद करता था, उनके साथ वो खड़ा रहता. और जो तुम्हारी उम्र अब नहीं रही, अब तुम उतनी खूबसूरत नहीं रही, और तब भी जो था वो तुमसे ही तुम्हें पसंद करता तुम्हारी उस खूबसूरती को भी, तुम्हारी उस उम्र में जो तुम्हारी चेंजिंग फेस है उसको भी पसंद करता. तो क्या बोलता है, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस एंड बेंडिंग डाउन beside द ग्लोइंग बार्स. जब तुम मुड़ी होंगी, क्योंकि जब ओल्ड एज इंसान हो जाता है तो मुड़ जाता है, बेंड डाउन हो जाता है. बेंड डाउन beside द ग्लोइंग बार्स, यानी जब ग्लोइंग बार्स हियर मीन्स की फायर प्लेस. तुम जब आग के अंगीठी के पास बैठी होंगी. मुरमुर का मतलब क्या है, स्पीक सॉफ्टली. और तब तुम क्या आहिस्ता से बोल रही होंगी. एंड लिटिल सैडली हाउ लव फ्लड. तो क्या बोलता मुरमुर, या तो ये बोल रहा है कि स्पीक सॉफ्टली, यानी बड़ी क्या बोलता है, इन सॉफ्ट टोन ही वांट टू से, और इन अ लिटिल सैडली वेरी सैड मूड ही वांट टू से कि किस तरीके से वो प्यार जो है अब खत्म हो गया. हाउ लव फ्लड एंड बेंडिंग डाउन beside द ग्लोइंग बार्स मुरमुर अ लिटिल सैडली हाउ लव फ्लड. किस तरीके से वो प्यार जो है वो खत्म हो गया, उड़ गया. एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड. और वो कहाँ चले गया. एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार्स. अब ये लास्ट में क्या बोलता है, एट लास्ट द लेडी विल ग्रीव अवर. और फिर जो है क्या होगा कि तुम जो है अब पछताओगी. उस उम्र में तुम अब, यानी इस एज में जाके तुम पछताओगी. और क्या बोलता है, एट लास्ट द लेडी विल ग्रीव अवर द लॉस ऑफ हर ट्रू लव. फिर तब तुम्हें पता होगा कि लगेगा कि ट्रू लव क्या था. फीलिंग फ्रॉम हर एंड ज्वाइनिंग अ क्राउड ऑफ स्टार्स वेरी डिस्टेंट फ्रॉम हर. लेकिन तब मैं आसमान में ऊपर चले गया हूँगा. क्योंकि क्या लिखता है, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड. और मैं जो है तब आसमान के ऊपर चले गया हूँगा. एंड हिड हिज फेस एमिड अ क्राउड ऑफ स्टार. और मैं जो है और फ्लीइंग फ्रॉम हर एंड ज्वाइनिंग अ क्राउड ऑफ स्टार वेरी डिस्टेंट फ्रॉम हर. अब मैं तुमसे बहुत दूर आसमान के तारों में छुप गया हूँगा. Thus the poet expresses his true intention while his beloved fails to understand. And in this poem he want to write down these true intentions for that poet. So it might be possible that she might have misunderstood her, and he want to clarify his position why he want to get married with her. So this was the poem, very small poem, very short poem, but with deep meanings. So in nutshell we can say the brief central idea of this poem that man should be beautiful from, man is beautiful from his heart. A person who is handsome, his soul is, if your soul is handsome, you are handsome. So this is what we can say. This is small summary of this poem. You have to complete that poem. You can consult your book also where you can complete this poem.
तो क्या बोलता है इस पोएम में कि मॉड गॉन, दिस पोएम इज डायरेक्टली रिटन टू मॉड गॉन, ठीक है, हु वाज मोस्ट ब्यूटीफुल यंग लेडी ऑफ हिज टाइम, उस वक्त बहुत ही खूबसूरत थी वो। शी वाज बिलीव टू बी इंस्पायरेशन बिहाइंड दिस पोएम। तो ये पोएम जो है शायद इसी के लिए लिखी गई है। द टोन ऑफ द पोएम इज वन melancholy. विलियम बटलर इमेजिन्स हर फ्यूचर ईयर्स एंड हिज ट्रू लव। तो ये अपनी इमेजिन करता है कि जब बुढ़ापा होगा तुम कैसी होंगे और मैं कहाँ हूँ। इसी के बारे में कुछ ये वर्ड्स जो है इसने कलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो मूविंग अहेड, विच पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम। अगर आप ये वाले देख पा रहे हो यहाँ पे, नॉडिंग बाय द फायर, ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक। नॉडिंग बाय द फायर मतलब सिटिंग बाय द फायर, यू आर सिटिंग बाय द फायर। ड्रीम ऑफ अ सॉफ्ट लुक व्हेन यू वाज यंग, जब तुम जवान थी। डीप शैडोज ऑफ द आईज, यानी तुम वेरी ब्यूटीफुल आईज। मोमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, यंग एज व्हेन यू आर यंग। पिलग्रिम्स और प्योर हर्ट, द ग्लोइंग बार्स, जलती हुई अंगीठी, एंड फायर प्लेस, क्राउड ऑफ स्टार्स एंड बिहाइंड द स्टार्स। सॉरोज ऑफ चेंजिंग फेस, यानी जो विद यानी ग्रोइंग एज, योर ग्रोइंग एज। तो ये क्या है, दीज पोइटिक डिवाइसेस आर टोटली इमेजरी, कि ये इससे जब हमारे सामने बोलता है कि तुम बैठी होंगी तो इमेज बन जाती है। जब ये बताता है कि तुम सपना देखना कि कैसी तुम्हारी जवानी में खूबसूरती थी, तो दैट इज इमेज, ठीक है। तो दीज आर इमेजेस विच हैव बीन यूज्ड बाय दिस पोइट, राइट। नाउ दिस इज इमेजरी, वी कैन से दिस इज अ इमेजरी पोइटिक डिवाइस वेयर ही हैड यूज्ड दिस। एंड व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। राइम स्कीम क्या है, अगर लास्ट पे अगर आप देखें इस पहले स्टैंजा का, स्लीप, देन इट इज बुक, लुक, डीप। तो स्लीप और स्लीप, ए इज स्लीप, बी इज बुक, सी इज लुक। तो ए डी इज डीप, ए राइम्स विद डीप, डी, राइट। तो वी कैन से ए बी बी ए, ए बी बी ए, फिर ग्रेस ट्रू यू फेस, तो उसके साथ क्या आएगा, अब ए बी बी ए, सी डी डी सी, सी डी डी सी, ई एफ एफ ई, ई एफ एफ ई, यानी पहली लाइन जो चौथी लाइन के साथ राइम कर रही, दूसरी लाइन जो तीसरी के साथ राइम कर रही। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। फुल ऑफ स्लीप मतलब अप्रोचिंग डेथ, यानी फुल ऑफ स्लीप होगा क्योंकि पहली लाइन में बोलता है व्हेन फुल ऑफ स्लीप नॉडिंग बाय द फायर, कि फुल ऑफ स्लीप मतलब कि तुम्हें नींद आ रही होगी, तुम उसका मतलब कि ऐसी उम्र जब मौत नज़दीक होती है। नॉडिंग बाय द फायर, सिटिंग बाय द फायर। मोमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, द टाइम ऑफ, ये वाले आपने इनको भी फोकस करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी 1 नंबर का आ जाता है, कभी तो 3 नंबर के आ जाते हैं, किसी भी पोएम में से 3 नंबर के ये सीधा मीनिंग लिखने आते हैं। द मोमेंट ऑफ ग्लेड ग्रेस, द टाइम ऑफ यूथ। पिलग्रिम सोल्स मीन प्योर हर्ट ऑफ, या सोल ऑफ मॉड गॉन भी बोल सकते हैं। ग्लोइंग बार ऑफ फायर प्लेस, मरमरा स्पीक सॉफ्टली, यानी नरमी से बोलना, ठीक है। एंड दीज आर क्वेश्चंस, हाउ इज द जर्नी ऑफ द यूथ टू ओल्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। ये जर्नी जो है यंग एज से, जवानी से बुढ़ापे में किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है। व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन। फुल ऑफ स्लीप में हमने पीछे अप्रोचिंग डेथ बोला, ठीक है, या डोजिंग। How is the poet's love different from others? How it is different from, because he loved her pure heart, pilgrim soul, not her physical body. And what is Maud Gonne reminded of in the poem? कौन सी चीज़ उसे याद दिलाई जाती है, कि उसे सॉफ्ट लुक, ड्रीम ऑफ योर सॉफ्ट लुक, यंग एज, ठीक है, उसके बारे में उसे याद दिलाया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू। एंड आपने ये तो पहले तो ये 4 क्वेश्चन करने, ठीक है, इनके आंसर। उसके बाद ये जो न्यू वर्ड्स हैं, फुल ऑफ स्लीप, नॉडिंग बाय द फायर, ये सारे ये भी आप करेंगे होमवर्क में, ठीक है। उसके बाद एक राइम स्कीम लिख देंगे कि राइम स्कीम इसकी क्या है, और इमेजेस कौन कौन सी इसमें यूज हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस।